Hello students, today we will continue with the second part of the poem Aunt Jennifer's Tigers. So we have discussed about the first part and the first two stanzas were discussed. So to continue with, we will first revise the first two stanzas. In the first stanza, it was said that Aunt Jennifer's tigers they prance across a screen, that they are jumping across a screen. She has made a screen, उसने एक screen बनाई है on which she is embroidering a few tigers and they are prancing, they are jumping there. So tigers created by Aunt Jennifer are jumping. So it's the character of a tigers that they are jumping and moving freely without any fear. The second character that has been mentioned that they are like bright topaz. It means they are so bright that they are looking like topaz. In Hindi that is called पुखराज, कि वो पुखराज के जैसे चमकीले हैं. येलोइश स्टोन होता है, वैल्यूबल स्टोन. डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कि एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के दैट इज़ फॉरेस्ट, की फॉरेस्ट के वो डेनिजेंस हैं, हरे भरे संसार के निवासी हैं. इट मीन्स दे कैन मूव फ्री एनी वेयर इन द फॉरेस्ट. लाइक Aunt Jennifer can't move anywhere in her surrounding. They do not fear the man beneath the tree, and they have no fear the tigers. This character is that they don't afraid of anything. So some men or the male candidates they are sitting there under the tree and they have no fear of them, while Aunt Jennifer is also having fear of them. They pace in sleek chivalric certainty, and they also pace. Pace means moving speedily. So while they are moving, jumping, they are also having a pace in a sleek. Sleek means elegant or smoothness with a type of, you can say, grand, magnificent way. They are moving ahead and in a chivalric or bravery and with confidence and courage. So these are the characters they have been shown in the first stanza. Now we will discuss about the second stanza or revise second stanza. Aunt Jennifer's fingers are fluttering. So Aunt Jennifer's fingers are fluttering through her wool. Find even the ivory needle hard to pull, and she finds even the ivory needle hard to pull. So here it has been shown that what is the condition of Aunt Jennifer. Aunt Jennifer, while creating tigers on a panel with the help of wool, her fingers are fluttering or trembling. कि उसकी fingers हैं वो काँप रही हैं. क्यों काँप रही हैं? Because of the fear. Because of the fear of her husband. There is a psychological fear that whenever he would come there, he would beat her और scold her. कि जब भी वो उसके पास आएगा उसको डांट लगाएगा. So such type of fear is in her mind, and that's why the fingers are fluttering, and also she finds hard to pull the ivory needle. The next, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. कि Aunt Jennifer के जो hands हैं उनके ऊपर एक massive weight बैठा हुआ है. It seems that the wedding band is the symbol of has a type of bond of married life between husband and wife. हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक बॉन्ड होता है जो एक दूसरे को बांधता है, एंड इट इज़ अनब्रेकेबल, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता है. सो द पोइट इज सेइंग दैट आफ्टर मैरिज व्हेन ए लेडी इज मैरिड टू अ हस्बैंड, टू अ मेल, शी इज़ अंडर सच टाइप ऑफ ड्यूटीज और हार्श डिफिकल्टीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. शी हैव टू obey from her husband. She have to obey of her husband. That is like a massive weight. That is like massive weight that sits heavily upon Aunt Jennifer. कि Aunt Jennifer की जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इतनी भारी हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ के ऊपर हैविली बैठी हुई हैं. दैट इज़ अ हाइपरबोली. So what is the condition of Aunt Jennifer that was discussed. So these two stanzas we have already discussed. Now come to the next or the third stanza. We'll discuss in detail. When aunt is dead, कि जब aunt मर जाती है, aunt मर जाएगी, her terrified hands will lie. कि aunt जब मर जाएगी उसकी dead body होगी, उसके जो hands हैं they will lie also. So the hands have been terrified. Actually hands are not terrified. Aunt Jennifer was terrified. You can say someone's heart, someone's mind that is terrified, not the hands. Hands कभी भी terrify नहीं होगी. So because it has been just imposed on the hands, it will be transferred epithet. इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर्ड epithet कहेंगे, कि जो क्वालिटी उस पर्टिकुलर नाउन के लिए है ही नहीं,
और उसी के ऊपर लाद दी गई है, इम्पोज कर दी गई है, दैट इज ट्रांसफर्ड एफिथेट। सो व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट मर जाएगी तो उसके हैंड्स हैं वो टेरिफाइड होंगे। तो एक प्रकार से आंट किस चीज़ से टेरिफाइड है? आंट अपने हस्बैंड से ही टेरिफाइड है कि हस्बैंड उसको किस प्रकार से स्कोल्ड करता है, उसके साथ बैड ट्रीट करता है, क्रूअल बिहेवियर करता है। सो सी इज़ हैविंग टेरिफाइड विद हर बिहेवियर ऑफ हस्बैंड। एंड इन द नेक्स्ट लाइन इट हैज़ बीन सेड दैट स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स, कि डैड मरने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि दैट इज़ रिंग्ड, उसके हैंड्स इतने टेरिफाइड दिखाई देंगे, आप यू कैन रिकॉग्नाइज दैट दे आर स्टिल रिंग्ड, दे आर स्टिल सराउंडेड बाई, रिंग्ड मीन्स सराउंडेड बाई, कि वो घिरे हुए हैं विद ऑर्डिल्स। ऑर्डिल्स मीन्स डिफ़िकल्टीज़, कि जो हार्श डिफ़िकल्टीज़ उसने सहन की हैं अपनी मैरिड लाइफ के दौरान, उनसे सी वॉज मास्टर्ड बाई, जिससे कि उसको मास्टर बाई किया गया था। और किसके द्वारा मास्टर बाई किया था? हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने उसको मास्टर बाई किया था, मतलब उसके ऊपर मालिकाना अधिकार जताया था डिफ़िकल्टीज़ दे करके। तो उन डिफ़िकल्टीज से वो अभी भी घिरी हुई है। ये डेड बॉडी से उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, मतलब उसके ऊपर कुछ रिंकल्स हैं, या उसकी जो रिंग, उसने मैरिज रूपी जो रिंग पहनी हुई है, वो स्पष्ट दिखाएगी कि किस प्रकार से उसकी हालत है, उसकी की जो फिजिकल कंडीशन है उसकी बॉडी की, दैट वाज नॉट सो गुड। एंड इट ओनली शोज दैट शी हैड एक्सपीरियंस्ड वेरी मच डिफिकल्ट टाइम ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। सो इवन अदर मीनिंग इज ऑल्सो देयर, कि जो आंट जेनिफर है शी विल डेड, बट इवन देन द ऑर्डिल्स विल बी सराउंडेड टू द डिफरेंट लेडीज ऑफ द वर्ल्ड, कि चाहे आंट जेनिफर है वो मर जाए, चाहे दूसरी लेडीज मर जाए, लेकिन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं दे विल गो ऑन इन द फीमेल्स टिल द टाइम दे विल नॉट अपोज द क्रूएलिटी ऑफ द मेल्स। जब तक वो मेल्स की क्रूएलिटी के खिलाफ है वो नहीं बोलेंगी, इट विल गो ऑन। In the next sentence it has been said that the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid, कि जो टाइगर्स उसने पैनल में बनाए, क्योंकि वो पैनल के अंदर ही है, पैनल से बाहर नहीं आएंगे। सो इट इज़ पैनल इज ऑल्सो सिंबल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, दैट दे वुड गो फ्री, so in their surrounding they will go free. So in the same way the males are also the same represented as tigers, and they will also go free in their surroundings without any difficulty, jumping proudly and also unafraid, बिना किसी डर के, because females will never, or the ladies will never oppose them. So in that way they will go same. So another way it can also be expressed that because she has also made the tigers only in a panel, so that is having a restriction or limit, they can't come out of this panel, कि पैनल से वो बाहर नहीं आ पाएंगे, वो अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो अंदर ही रखेंगे। इन द सेम वे आंट जेनिफर के भी मन की जो हार्ट की इच्छा है वो उसके मन के अंदर ही रह जाएगी, व्हेन शी इज डेड, कि जब वो मर जाएगी तो ये सारी चीज़ें इच्छाएं हैं वो उसके मन में रह जाएंगी, एंड दोज विल नेवर कम आउट टू एक्सप्रेस अगेंस्ट आवर हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ आवर हस्बैंड, कि उसके हस्बैंड के सामने कभी ये चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएंगी। सो इन दैट वे द इनर फीलिंग्स ऑफ द आंट जेनिफर, they will always go on prancing proud and afraid, but she couldn't express because she will die one day with the hardships of the married life. So this is the poem. Now we will discuss the question answers, and the first question is, how do denizens and chivalric add to our understanding of the tiger's attitude, कि जो डेनिजन वर्ड है और शिवालरिक वर्ड है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को कैसे ऐड करते हैं अगर हम टाइगर्स के एटीट्यूड को पढ़ना चाहते हैं। टाइगर्स हैं वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग, बट हियर इट हैज़ बीन सेड दैट, फर्स्ट आप मीनिंग बताएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेनिजन्स। डेनिजन्स मीन्स ड्वेलर्स, एंड ए ड्वेलर कैन और रेजिडेंट कैन मूव इन हिज और हर सराउंडिंग वेरी फ्रीली, कि अपनी सराउंडिंग के अंदर, अपने एनवायरनमेंट के अंदर क्या है वो फ्रीली घूम सकता है। तो डेनिजन्स हैं वो ड्वेलर्स हैं। यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो कहाँ के ड्वेलर होते हैं? दे आर द ड्वेलर्स ऑफ फॉरेस्ट, कि वो फॉरेस्ट के ड्वेलर्स हैं, फॉरेस्ट के रहने वाले हैं। सो दे कैन मूव एनी वेयर इन द फॉरेस्ट, कि जो टाइगर्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, दे आर फ्री। सो डेनिजन वर्ड एक्चुअली एड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड, कि वो टाइगर्स के एटीट्यूड्स के बारे में बताता है कि दे कैन मूव फ्रीली एनीवेयर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज शिवालरिक, एंड शिवालरिक मीन्स दैट इज बोल्ड, ब्रेव एंड हैविंग करेज, कि जो बहादुर है, करेज रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर मौजूद है? दे आर ऑल्सो हैव द टाइगर्स। सो दीज यू कैन गिव द मीनिंग। फर्स्टली शिवालरिक मीन्स ब्रेव और courageous, full of courage and confidence.
So tigers are also brave. They don't afraid of anything. They are also confident. They can move freely anywhere. So these two words add our understanding of tiger's attitude. The second question, why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool? कि आप ये क्यों सोचते हो कि आंट जेनिफर के जो हैंड्स हैं वो फ्लटर कर रहे हैं वूल में इन द सेकंड स्टेंजा? व्हाई इज सी फीलिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? सो ऐसा क्यों है कि वो नीडल्स को इतना हार्ड महसूस कर रही है उसको पुल करने के अंदर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो द आंसर विल बी आंट जेनिफर इज हैविंग अ फियर, अ साइकोलॉजिकल फियर, अ मेंटल फियर फॉर हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड का उसको डर है, एंड दैट्स वाई हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग और ट्रेम्बलिंग. उसकी जो फिंगर्स हैं वो ट्रेम्बल कर रही हैं, काँप रही हैं, फ्लटर कर रही हैं. और यही रीज़न है कि सी finds the needle so hard to pull because she is always in the fear about the cruelty of her husband that he would come and scold her. The third question, what is suggested by the massive weight of uncle's wedding band? कि अंकल की जो वेडिंग बैंड है उसका मैसिव वेट है, इससे आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या समझते हैं? एक्चुअली वेडिंग बैंड क्या है? इट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का बॉन्ड है दैट इज़ अनब्रेकेबल व्हेन दे गेट मैरिड. जब उनकी मैरिज हो जाती है तो इट इज़ समथिंग लाइक अनब्रेकेबल, ये तोड़ा नहीं जा सकता. एंड दैट्स वाई द वाइफ शी हैड टू बियर द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग. कि अंकल के साथ जो उसने वेडिंग की है, जो शादी की है, जो शादी रूपी बंधन में वो बंध गई, उसके कारण क्या है, उसको मैसिव वेट सहन करना पड़ता है. ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए इसको बताया गया है. उसको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सहन करनी पड़ती है. सो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग्स आर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लेडी और हियर स्पेशली आंट जेनिफर हैव टू सफ़र. आंट जेनिफर को जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी सफ़र करनी पड़ रही हैं, दे आर द मैसिव वेट बिकॉज हर हस्बैंड इज सो क्रूअल एंड ही ऑलवेज orders and also treat badly her. Fourth question, of what or of whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? कि थर्ड स्टेंजा के अंदर जो आंट जेनिफर है वो किस चीज़ से टेरिफाइड है? वंस अगेन सी इज़ टेरिफाइड विद हर हस्बैंड, सी इज़ मास्टर्ड बाय. तो वो अपने हस्बैंड से टेरिफाइड है, हस्बैंड की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे टेरिफाइड है. हस्बैंड उसको किस प्रकार से टॉर्चर करता है, उन चीज़ों से वो टेरिफाइड है because she is mastered by her husband. So it has been also called ordeals also, that is in the next question. In next question, what are ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? कि कौन से ordeals हैं, कौन सी difficulties हैं, कौन सी sufferings हैं जिनसे Aunt Jennifer है वो surrounded by है, जिसके उसके चारों तरफ है. So the ordeals that she experienced during her married life, जो married life के बाद जो भी difficulties वो सहन कर रही है, जो एक्सपीरियंस कर रही है, दे आर द ऑर्डिल्स. वो ही ऑर्डिल्स हैं जिनसे वो सराउंडेड बाई है. व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोइट यूज्ड वर्ड रिंग? क्या ये सिग्निफिकेंट है कि उस पोइट ने रिंग्ड वर्ड यूज़ किया है? व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोइम? पोइम के अंदर रिंग्ड वर्ड के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? सो इट इज़ सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रिंग्ड का मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाई, एक जगह के चारों तरफ रिंग्ड हो गया. So because she is surrounded by the difficulties that is given by her husband, so the ringed word is significant. The other meaning of ring might be a symbol of the marriage. एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, that is ringed का, that is symbol of marriage, कि मैरिज के प्रतीक के रूप में रिंग को यूज किया जाता है. रिंग है वो मैरिज का एक सिंबल है. that is whenever the ladies are got married, they also wear a ring in their fingers, so it is also symbol. So because the ring has two words, it is also, when a ring have two words, it is also called a pun. So the figure of speech in this particular line is called pun. Next question is, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? ऐसी एनिमल्स उसने क्यों क्रिएट किए हैं जो कि उसके करेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है? व्हाट माइट बी द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? और इस डिफरेंस से पोइट क्या बताना चाहता है? क्योंकि आंट जेनिफर की ने ऐसे एनिमल्स क्रिएट किए हैं, जो आंट जेनिफर है वो बिल्कुल वीक है, डल है और बिल्कुल सामने नहीं आती है. सी नेवर स्पीक अगेंस्ट हर हस्बैंड. सो बट द टाइगर्स who are totally different, they are brave, they are confident, they are courageous, and she had created this tiger because the inner feeling of the Aunt Jennifer's
इनर फीलिंग इज़ लाइक अ टाइगर, कि उसकी जो इनर फीलिंग है वो तो टाइगर्स की जैसी है. सी वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ अ टाइगर, लाइक अ ह्यूमन, लाइक ए मेल. वो भी अपनी जो ज़िंदगी है वो इस प्रकार से जीना चाहती है जैसे कि एक टाइगर जीता है. सो टू एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स सी हैड क्रिएटेड दिस टाइगर्स. बट माइट बी द पोइट बी सजेस्टिंग, पोइट इस डिफरेंस से क्या सजेस्ट करना चाहता है, ये वो यही सजेस्ट करना चाहता है कि जो लेडीज़ हैं, वेमेन हैं, दे शुड ऑल्सो हैव इक्वल राइट्स, कि उनके भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनको भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो एक मेल कैंडिडेट को मिलता है. दे शुड ऑल्सो लिव फ्रीली विदाउट एनी फियर ऑफ देयर हस्बैंड्स, अपने हस्बैंड के डर के बिना ही उनको भी जीना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन द पोइम. पोइम के अंदर कौन कौन से सिंबल है, तो आप सबसे पहले कहेंगे टाइगर है जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है, उनके काफ़ी ब्रेव होते हैं, दे कैन फ्री मूली जस्ट मूव फ्रीली एनीवेयर. नेक्स्ट है टोपाज. टोपाज एक वैल्यूबल स्टोन है और येलोइश कलर का है, काफ़ी अट्रैक्टिव है. इन द सेम वे दैट इज ऑल्सो शोइंग हियर द क्वालिटी ऑफ ए टाइगर, टाइगर की क्वालिटी के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट है वेडिंग बैंड यूज़ किया गया है. वेडिंग बैंड एक मैरिज का बॉन्ड है हस्बैंड और वाइफ को मजबूत बनाने के लिए, और लेकिन यहाँ पर जो वेडिंग बैंड है वो ये बता रहा है कि किस प्रकार से वो एक मैसिव वेट के रूप में आंट जेनिफर के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है. नेक्स्ट है पैनल यूज़ किया गया है. पैनल मीन्स द रिस्ट्रिक्शंस. पैनल के अंदर अगर कोई चीज़ है, यानी ये आंट जेनिफर के हार्ट की चीज़ें हैं कि उसने टाइगर्स बनाए, वो भी ऐसे जीना चाहती है. और ये दिस पैनल गिव ओनली, पैनल और स्क्रीन दैट ओनली गिव्स व्हाट, दैट इज गिव द रिस्ट्रिक्शंस. वो एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है कि वो पाबंदी के अंदर है, इससे दिल के बाहर वो नहीं आएगी. सो दीज आर द सिम्बल्स दे हैव बीन यूज्ड इन द पोएम. नाउ also ringed word is also used. Ringed has surrounded by and also having the meaning of ring, that is the bond between of marriage between husband and wife. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर. क्या आपको आंट जेनिफर के साथ कोई सिंपैथी है, आप क्या उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं. वट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर. और आंट जेनिफर के प्रति क्या एटीट्यूड है स्पीकर का, स्पीकर का क्या प्रतिक्रिया है, किस प्रकार का वो दृष्टिकोण रखता है. तो आप कह सकते हैं स्पीकर तो क्या है, पॉजिटिव है, उसके प्रति सिंपैथी दिखा रहा है, उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, किस प्रकार से वो टेरिबल कंडीशन के अंदर है, किस प्रकार से उसके फिंगर्स फ्लटर कर रही हैं, and she can't pull the ivory needles in the wool as well. So even he is saying that when she is dead, she would be terrified, her hands would be terrified even after the death. So he is having all the sympathy, but you can say that we have a sympathy towards Aunt Jennifer because she is so weak and her husband is torturing her. But you can also say that we don't have any sympathy because she is bearing everything विदाउट ऑब्जेक्शन, कि वो सब कुछ बियर करती जा रही है, कोई अपनी ये नहीं देखती कि आई हैव ऑल्सो सम राइट्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑल्सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, दे आर मेल और फीमेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. स्टोरी की थीम क्या है. थीम है दैट इज टेलिंग अबाउट द मेल फेमिनिज्म. वो मेल डोमिनेशन को बता रही है कि फेमिनिन पोइम है ये, जो फीमेल्स के बारे में बता रही है, बाइस करेक्टर बता रही है किस प्रकार से जो ह्यूमन बींग्स हैं मेल्स हैं वो फीमेल्स के ऊपर किस प्रकार से बाइस कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं. सो मेल डोमिनेशन को बता रही है कि मेल शेमिनिज्म के बारे में, कि मेल्स किस प्रकार से डोमिनेट कर रहे हैं, वो मेल शेमिनिज्म को फैला रहे हैं. दे आर जस्ट ट्रीटिंग बैडली टू देयर वाइव्स टू द फीमेल्स. सो दिस इज द थीम. बट व्हाट इज द मैसेज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोइम. मैसेज ये देना चाहता है कि दैट दिस गैप दैट शुड बी अब्रिज्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ और द मेल्स एंड फीमेल्स. मेल्स को सुपीरियर समझा जाता है जबकि फीमेल्स को इन्फीरियर समझा जाता है. दैट गैप शुड बी अब्रिज्ड. दे शुड बी गिवन, फीमेल्स शुड बी गिवन इक्वल राइट्स लाइक द मेल्स. दैट द पोइट वांट्स फ्रॉम द रीडर्स. So these are the question answers of this poem. We will continue. Yes, one question more be asked could be asked like Aunt Jennifer, she is escaping from the reality. क्या वो reality से escape कर रही? It seems. So you can say that yes, Aunt Jennifer is escaping from the reality because she is only bearing everything and she is just making up tigers on the panel. It is not quite right. She should oppose to her husband's cruelty and she should also discuss about it. She should speak about them that it should not happen and
by conversation the conclusion, the whatever that problem that could be solved. So that's all about this point. We will continue in the next.